everybody. Hello, I'm Arif, your faculty head, trainer and teacher, and today I'm going to make the paper solving of triple C test papers. The paper was held, the test was held on the Saturday, the weekends. Everybody wants to enjoy, but our classes, our students makes the paper very wealthy. With their well-being situations, they come to the classroom and they give a very healthy paper. Healthy paper in the sense what? With the enlightenment of the power of energy, they are using with the mind, constructions, logical abilities, and they solve good paper. And this was a very greetings to our class. Then except one student, there is a nobody failure in the classroom, named Sachin Singh. Now he is failed because our rules are rules for everyone, no matter what the situation is. So we have to finalize all those words here. So that is why Sachin Singh is feeling very shame here, and we all support him, and we also wanted the answer from him that by next week he should not repeat it again. I hope so, isn't it? Yeah, that's good. He sounds yes. So now we are going to solve the paper. I would like to invite Mr. Abu Faraz now. He will going to start reading the paper question one by one. Also he have to recite the options. While like a dummy, the first question is which generations of computer is still under development. This is the demonstrations I am going to make him understand. The first option is 4 generations, option B, 5th generation, option C. Understood? Now start, Abu. Hello everyone, good evening sir, and good evening my dear friend. Today I am going to read test paper with their option. First question is, which generation of computer is still under development? Option A, 4th generation, option B, 5th generation, option C, 6th generation, option D, 7th generation. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ बात इन्होंने कही कि सर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर अभी भी उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो अभी अंडर डेवलपमेंट में। तो अंडर डेवलपमेंट का मतलब उस पर भी काम चल रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ाया था तो जनरेशन में मैंने ये बात कही थी कि 5वीं पीढ़ी यानी कि 5th जनरेशन का कंप्यूटर क्या है, अभी भी अंडर डेवलपमेंट चल रहा है, उस पर काम चल रहा है, जिसको आप लोग क्या बोलते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ये सारे आपके रोबोटिक्स हो गए, साइंटिफिक कोड्स, ये सारे आपके आते थे 5वीं पीढ़ी में। कोई दिक्कत आता है? नहीं। तो आप क्या करिएगा, ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट करिएगा, बी आपका सही है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is, artificial intelligence is associated with which generation? Option A, 1st generation, option B, 2nd generation, option C, 5th generation, and option D and last option 6th generation. जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि 5वीं पीढ़ी में रोबोटिक्स भी था, आपका एआई भी था, तो आपको यहाँ पे वो जवाब मिल चुका होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है यानी कि सेकंड वाले क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है सी, जिसको बोलते हैं 5th जनरेशन, उसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट Question 3 is, which operation is not performed by computer? First, inputting, second, processing, third, controlling, and fourth, understanding. फराज ने भी कहा कि कंप्यूटर द्वारा कौन सा कार्य नहीं होता है। तो देखिए जाहिर सी बात है, पहला बोला इनपुट तो करता ही है, यूजर द्वारा दिया गया इनपुट, प्रोसेस भी करता है, उस पर काम करना, उसका रिजल्ट ढूंढना, कंट्रोलिंग भी यूजर ही करता है, लास्ट है अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद खुद से सोचने समझने की क्षमता नहीं मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन टिक कर लेंगे। नेक्स्ट Fourth question is, 5th generation computer is also known as option A, knowledge information processing system, option B, very large scale integration, and option C, both of above, and option D, none of above. इनका कहना है 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो करता क्या था, क्या नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम थी उसके पास, क्या वो ज्ञान अपने आप से सीख रहा था। अपने आप का मतलब क्या, अगर आपने कोई डेटा उस पर डाला है तो उसको इंटरप्रेट भी कर रहा था, पहचान भी रहा था, और पहचानने के साथ साथ क्या कर रहा था, उस चीज़ को अपना रहा था। ठीक है, अपनाने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने कोई डेटा उस पर इनपुट कराया हिंदी में, अरबी में, फारसी में, उसको बेहतर समझ रहा था कि इसका जवाब अगर आप हिंदी में खोज रहे हो तो क्या होगा इसका अनुवाद, ट्रांसलेशन वर्जन में आपको इसका आंसर मिल रहा था। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला वाला ऑप्शन 4 का पहला नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट Fifth question is, what difference does the 5th generation computer have from other generation computers? Option A, technological advancement.
and option B scientific code, option C object oriented programming and option D all of the above. इनका बोलना है कि हमारे पास जो पांचवी पीढ़ी थी, पांचवी जनरेशन थी, उसमें क्या ऐसा डिफरेंट अलग था बाकी सारी पीढ़ियों से। तो ऑप्शन दिया है टेक्नोलॉजिकली यानी तकनीक के माध्यम से क्या वो बहुत एडवांस आधुनिक था, आगे का था। ऑप्शन बी साइंटिफिक कोड्स का यूज किया गया था, जैसे सम हो गया, डिफरेंस हो गया, आपका इफ हो गया, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी थी। ऑब्जेक्ट मतलब क्या कि आप सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप कर रहे थे, कोई प्रोग्राम, कोई गेम डेवलप कर रहे थे जिसमें आप लोग फिगर्स देखते हो, फॉर एग्जांपल पबजी एंड ऑल दोस गेम्स, है ना, या ऑल ऑफ द अबव। तो जी हाँ, तीनों मौजूद थे उसमें। तो उसमें आप क्या करेंगे, ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ का ऑल ऑफ द अबव होगा। Sixth question is most important advantage of an IC is Its type. first option low power consumption, B option extremely high reliability, option C reduced cost, option D none of the above. फराज का कहना है कि जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो एडवांटेज, जो खासियत थी, जो फायदा था आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का, वो क्या था। तो ऑप्शन ए है लो पावर कंजम्पशन, बिजली कम ले रहा था, एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी, बहुत अधिक कह सकते हैं भरोसे के लायक था। उसके बाद आता रिड्यूस कॉस्ट, ये क्या था, कीमत इसकी काफी कम थी, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा, गौर से देखिए, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव कि तीनों इसके अंदर वो खासियत मौजूद थी, जिसका मतलब टेक्नोलॉजिकली एडवांस था, साइंटिफिक कोड था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था। तो ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ का डी ऑप्शन टिक करिएगा। सिक्स क्वेश्चन पढ़िए। Sixth number question is most important advantage of an IC is it. First option is low power consumption, second option extremely high reliability, C option reduced cost and D option none of the above. फराज का बोलना है कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, जिसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन में यूज किए थे, एडवांटेज की बात कर रहा था, मोस्ट एडवांटेज ऑफ आईसी। आईसी की क्या एडवांटेज थी, तो देखिए इसका होगा ऑप्शन बी। सिक्स का बी एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी, कह सकते हो अत्यधिक विश्वसनीय, बहुत भरोसेमंद था, क्योंकि अब कंप्यूटर्स गलतियां नहीं कर रहा था, उसकी प्रोसेसिंग में मिस्टेक नहीं हो रही थी, कैलकुलेशन वगैरह में। ठीक है, मैं चाहूंगा फराज बेटर क्लैप फॉर हिम। So I would like to invite Anup Srivastava now. He will be going to start reading the test paper. Now clap hands for him. Now you please introduce yourself first and now start reading. Good evening sir and good evening my friends. Myself Anup Kumar Srivastava and I am here to read the test paper. Question number 7. Which of the following technology is used first generation? Option A IC integrated circuit, option B vacuum tube, C SI, D none of the above. अभी अनुप से एक छोटी सी मिस्टेक होती हुई, ऑप्शन सी जो था वो एसआई नहीं, एसएसआई था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, फुल फॉर्म भी नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो अनुप का कहना है कि सातवें क्वेश्चन का जो इनका सवाल था वो था कि पहले पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी, किस तकनीक का प्रयोग किया गया। पहला ऑप्शन है आईसी, बिल्कुल नहीं। वैक्यूम ट्यूब, बिल्कुल हाँ, वैक्यूम ट्यूब जिसको आप लोग क्या बोल रहे थे, हाइड्रोजेनिक बल्ब जैसा था वो, तो बहुत हाई पावर कंजम्पशन था, इसलिए इसका इस्तेमाल केवल 0 और 1 बाइनरी कोड्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर ऑन है कि ऑफ के लिए बताया गया था। तो आप ऑप्शन बी को टिक करें, 7 का बी वैक्यूम ट्यूब। 8 Which year developed the second generation computer? Option A 1958 to 1987, option B 1925 to 1987, option C 1956 to 1965, option D none of the above. ठीक है, इसका मतलब है कि कौन सी कह सकते हैं दूसरी पीढ़ी में वर्ष कौन सा था जिसमें ये आपका कहां से कहां तक चला था, किस वर्ष में कितने वर्षों तक ये प्रयोग में लाया गया था। तो ऑप्शन सी पे ध्यान दीजिए, 1956 से 1965 तक, 1956 से 1965 तक। नेक्स्ट, Who was the developer of the mechanical calculator? Joseph Jacquard, Belsic. जोसेफ जैकवर्ड, Option A Joseph Jacquard, option B ब्लेज पास्कल, Blaise Pascal, option C Charles Babbage, बस ऑप्शन बी। दैट्स ओके। इस पर तीन ही ऑप्शन दे रखे हैं। सवाल ये था कि कौन से डेवलपर, किसने बनाया था मैकेनिकल कैलकुलेटर, यानी कि फिजिकल मैन पावर से चलने वाला, कल पुर्जों से, लोहे, स्टील, मेटल से बना हुआ कैलकुलेटर, जिसमें रोल्स का यूज किया गया था, बहुत सारे नट बोल्ट का यूज किया गया था। ऑप्शन ए जोसेफ जैकवर्ड,
जोसेफ मैरी जैकफोर्ड पूरा नाम था इनका, ब्लेस पास्कल और चार्ल्स बैबेज। तो ब्लेस पास्कल बिकॉज इस मशीन को पास्कलाइन मशीन भी कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट। What was the characteristic of computer? Option A fast speed, option B accuracy, option C diligence, option D all of these. अनूप के बताए अनुसार कि कंप्यूटर का जो चरित्र चित्रण था, चरित्र चित्रण कंप्यूटर का यानी कि काम वो कैसे करता था उसके बारे में उसके कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट फास्ट स्पीड, बहुत तेज था। ऑप्शन बी एक्यूरेसी, सटीक था, कैलकुलेशन में गलतियां नहीं कर रहा था। ऑप्शन सी डिलीजेंस, यानी निरंतरता के साथ काम करने में सक्षम था। लाइट मिलेगी 24 घंटा काम करेंगे, लाइट मिलेगी 365 दिन काम करेंगे। थकावट इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, सब कुछ था। तो जाहिर सी बात है सब कुछ होगा ऑल ऑफ दीज, तो आप 10th का डी वाला ऑल ऑफ दीज टिक करेंगे। नेक्स्ट। Which of the following technology use of the 5th generation computer? Option A artificial intelligence, option B knowledge information processing system, option C nanotechnology, option D all of these. अब देखिए इसमें गौर